السلام علیکم ناظرین، میں صدام حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں موجود ہوں مصر کے شہر قاہرہ میں اور قاہرہ کے مشہور قبرستان کرافہ الصغریٰ میں، اور ایک ایسی ہستی کی تربت پہ حاضری کے لیے آج ہم لوگ جا رہے ہیں جو کہ فاتح مصر ہیں، جن کو داہیۃ العرب کہا جاتا ہے، یعنی عرب کے چوٹی کے ذہین اور فتین لوگ، ان میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پہ آج ہم لوگ حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے، تو آپ کے صاحبزادے آپ کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کے حبیب نے یہ خوشخبری نہیں دی؟ کیا آپ کو اللہ کے حبیب نے یہ خوشخبری نہیں دی؟ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے مجھ پر 3 حالتیں رہیں، یعنی آپ نے فرمایا کہ مجھ پر 3 حالتیں رہیں، ایک اسلام لانے سے پہلے کی حالت، ایک جب میں اسلام لایا، اور ایک اس کے بعد ایک حالت۔ سیدنا عمرو بن عاص پھر اپنی پہلی حالت بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بغض رکھنے والی کوئی شخصیت نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اگر میسر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دوں۔ یہ آپ نے اپنی پہلی حالت بیان کی۔ ابھی ہم لوگ یہاں سیدھا جائیں گے تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف آئے گا۔ یہاں پہ ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد عقبہ بن عامر جوہنی ہے، اس مسجد کے اندر آپ کا مزار شریف ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو دوسری اپنی حالت بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کریم کا فضل کرم مجھ پہ ہوا اور میں اسلام لے آیا، اور فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لے کے آیا تو میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز اور محبوب شخصیت آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکا، مطلب آپ کے جلال، آپ کے پیار اور محبت میں آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکا، اور اگر مجھ سے کہا جائے کہ میں آپ کا حلیہ بیان کروں تو میں نہیں بیان کر سکتا۔ اور جب آپ نے پہلی اپنی حالت بیان کی تب آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو میں جہنمی ہوتا، اور پھر آپ نے جب دوسری حالت بیان کی تب بھی آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت مر جاتا تو میں ممکن تھا کہ جنت میں جاتا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی تیسری حالت بیان کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ اور چیزیں میری زندگی میں شامل ہو گئی، میں ان کے متعلق نہیں جانتا کہ ان کے متعلق میرا اللہ کریم کی بارگاہ میں کیا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی یا نصیحت کی کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو میرے قبر کے نزدیک کوئی نوحہ کرنے والی یا آگ میری قبر کے قریب نہ لانا، اور جب تم مجھے دفن کر لو تو میری قبر پر اتنی دیر جب تم مجھے دفن کر لو تو میری قبر پر پانی کے کچھ چھینٹے چھڑک دینا، اور اتنی دیر تک میری قبر پر کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے مانوس رہوں اور اللہ کریم کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ ابھی ہم لوگ بس پہ پہنچ گئے ہیں۔ اگر ہم لوگ سیدھا جائیں گے وہ سامنے جاتے ہیں تو وہاں پر مسجد ہے جس کا نام مسجد عقبہ بن عامر جوہنی، اس کے اندر جو ہے وہ سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف۔
ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद सैयद उक़बा बिन आमिर जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। ये सामने मस्जिद है जहाँ पर सैयदना, इस मस्जिद का नाम मैं बार बार बता चुका हूँ कि मस्जिद सैयदना उक़बा बिन आमिर जुहनी है, और इसी के अंदर सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा पाक है, यानी कि आपकी तुरबत है। आइए हम लोग अंदर चलते हैं, चलो जी। पढ़ते हैं। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसी हस्ती की तुरबत में मौजूद हूँ जिनका शुमार दाहियतुल अरब में होता है, यानी कि अरब के चोटी के ज़हीन और होशियार लोगों में, जिनकी ज़हानत व फ़तानत का तज़किरा हमेशा तारीख़ में इम्तियाज़ी हैसियत से होता रहा है। आप एक तजुर्बाकार जर्नल, कामयाब मुंतज़िम, मुदब्बर सियासतकार, मामला फ़हम, ज़ेर सफारती खूबियों और इंसानी इज्तिमाइयत से के मिजाज और नफ्सियात से अच्छी तरह वाक़िफ़ शख्सियत के मालिक हैं। आपकी ज़िंदगी के मुतादिद वाक़यात आपकी दूर अंदेशी और पेश बीनी की सलाहियत पर गवाह हैं। इज़्ज़त व शराफ़त, सखावत व शुजाअत, ज़हानत व फ़तानत और हमदर्दी जैसे औसाफ और सलाहियतों से माला माल ये अजीम हस्ती सहाबी रसूल फ़ातिह मिस्र सैयदना अमर बिन आस अल-करशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। कबूल इस्लाम से पहले आपके दिल में मुसलमानों से सख्त दावत थी। मारका बदर, उहुद और खंदक में मुसलमानों के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। सुलह हुदैबिया के बाद तो आपके जज्बात ये थे कि अगर आप फरमाते कि अगर पूरा कबीला कुरैश इस्लाम ले आए तो मैं फिर भी इस्लाम नहीं लाऊंगा। बिलाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हिदायत से नवाजा और 8 हिजरी में आपने इस्लाम कबूल कर लिया। कबूल इस्लाम के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीना में मोहब्बत और अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा दरिया मौजूद हुआ कि कोई, आप फरमाते हैं कि कोई शख्स मेरे नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब ना था, और मेरी आंखों में आपसे ज़्यादा अज़मत और जलालत वाला कोई ना था। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत की वजह से आपकी तरफ नज़र बढ़कर नहीं देख सकता था। आप फरमाते हैं कि अगर मुझसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करने के लिए कहा जाए तो मैं ऐसी अच्छी तरह बयान नहीं कर सकता। अगर आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब की बात की जाए तो आप इनमें भी बेमिसाल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह अमर बिन आस पर रहमत नाज़िल फरमा, बेशक ये तुझसे और तेरे रसूल से मोहब्बत करता है। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, अमर बिन आस बेशक कुरैश के नेकोकारों में से है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ईमान पर अमल बनाकर भेजा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ईमान पर अमीर बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ईमान पर आमिल बनाकर भेजा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ारी विसाल तक आप वहीं आमिल रहे। खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको शाम की जानब लश्कर इस्लाम का अमीर बनाकर रवाना फरमाया, जहाँ आपने अगली फतवाहत के झंडे गाड़े। 20 हिजरी में फ़ातिह मिस्र का एजाज़ पाया, 22 हिजरी में सिकंदरिया फ़तह किया, फिर 23 हिजरी में तराबलुस के कुछ इलाके फ़तह किए। 25 हिजरी में सिकंदरिया वालों ने बगावत की तो आपने उनकी सरकोबी करके दोबारा उनसे फ़तह कर लिया। दौरे फ़ारूकी में फ़लस्तीन के वाली मुकर्रर हुए, जबकि फ़तह मिस्र के बाद से 28 हिजरी तक मिस्र के गवर्नर रहे। एक कौल के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सन 43 हिजरी में ईद उल फितर की रात यानी यकम शवाल मुकर्रम तकरीबन 100 साल की उम्र पाकर इस दारे फानी से आखिरत की जानब कूच फरमाया।
आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मुबारक मुक़द्दम नामी पहाड़ के दामन में मस्जिद सैयदना उक़बा बिन आमिर जोनी के अंदर वाक़ है। जल्दी पे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मालदार सहाबी थे। आपने अपने पीछे काफ़ी मालो दौलत और जायदाद छोड़ी, जबकि आपसे रिवायत करदा हदीस के तादाद तकरीबन 37 है। सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करीबुल मर्ग थे तो काफ़ी देर आप दीवार की तरफ मुँह करके रोते रहे। आपके बेटे कहने लगे, अब्बा जान आप क्यों रोते हैं? क्या आपको अल्लाह के हबीब ने ये खुशखबरी नहीं दी? क्या आपको अल्लाह के हबीब ने ये खुशखबरी नहीं दी? फिर आप यानी अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतवज्जे हुए और फरमाया कि हमारे बेटे, हमारे यहाँ सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देना है। आपने फरमाया कि मेरी 3 हालतें रहीं। अब आपने अपनी पहली हालत बयान करते हुए यानी इस्लाम लाने से पहले की हालत बयान करते हुए फरमाया कि मेरे ख्याल में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने में मुझसे ज़्यादा कोई शक ना था, और ना ही किसी को मुझसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ना ही मुझसे ज़्यादा किसी को ये बात पसंद थी कि अगर कुदरत हो तो मैं नाउज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूँ। आप फरमाते हैं कि अगर मैं इस हाल में मरता तो जहन्नमी होता। ये आपने अपनी पहली हालत बयान की यानी इस्लाम लाने से पहले की। इसके बाद आपने अपनी दूसरी हालत बयान की जब आप इस्लाम लाए। फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाली तो आप फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अपने हाथ दीजिए ताकि मैं आपके हाथ पर इस्लाम की बैत करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ बढ़ाया तो आप फरमाते हैं कि मैंने अपना हाथ बंद कर लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अमर तुझे क्या हुआ? आप फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैं शर्त लगाना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है अमर क्या शर्त लगाना चाहते हो? तो आप फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह शर्त ये है कि इस्लाम लाने से पहले के गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ या रसूलल्लाह, यानी पहले इस्लाम लाने से पहले के गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ। फिर आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों के बारे में बात की जिनको करने से साबिक़ा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस्लाम अपने से पहले तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देता है? हिजरत अपने से पहले तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देती है और हज अपने से पहले तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देता है। फिर सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर मेरी नज़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई महबूब ना था और ना ही मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई बड़ा था। आप फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल की वजह से आपको जी भरकर नहीं देख सकता था। अगर मुझसे कहा जाए कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करूँ तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं आपको पूरी ज़िंदगी जी भरकर नहीं देख सकता, मतलब नज़र भरकर मैं आपको नहीं देख सकता था। आप फरमाते हैं कि अगर मैं इस हाल में मरता तो मुझे उम्मीद थी कि मैं जन्नती होता। ये आपने अपनी 2 हालतें बयान की, एक इस्लाम लाने से पहले की और एक वो हालत जब आप इस्लाम लेकर आए। इसके बाद आप अब अपनी आगे तीसरी हालत बयान करते हुए इसके बाद फिर आप अपनी तीसरी हालत बयान करते हुए फरमाते हैं, फिर कुछ और चीज़ें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई और मैं नहीं जानता कि इनमें मेरा क्या हाल होगा। फिर आपने अपने बेटे को नसीहत की और फरमाया, लिहाजा जब मैं मर जाऊं तो कोई नुहा करने वाली और आग मेरे करीब ना लाना। जब तुम मुझे दफन कर लो तो मेरी कब्र पर पानी के छींटे छिड़क देना। फिर इतनी देर तक मेरी कब्र पर खड़े हो जाना जितनी देर में एक ऊँट ज़िबा करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि मैं तुम्हारी वजह से मानूस रहूं और अपने रब के फरिश्तों के सवाल का इंतज़ार करूं।